So, welcome everyone. Today we are going to talk about words, or we call it word. We all know that everything starts, why we are here. We are here so that we can communicate in English. There's no doubt on that. So, Yeah, definitely, sir. yeah. So, everything starts from alphabet. Alphabet means, the letter starts from A, B, C, D, and it goes till Z. There are some vowels, there are some consonants. Why I'm talking from a very basic, so that you understand everything step by step. So you all know about alphabet A to Z. Now we know that we cannot speak English with alphabet. We cannot speak English using A, B, C, D, right? Yes. We need to make sentences. Now to make sentences, we need word. We need word. Yes. Even we have seen so many people, they have words, but they don't know how to pronounce. You know, I've seen many people, they know a particular word, but the way they pronounce the word, somewhere they can't pronounce it appropriately. And so many times it happens, like a Bengali, he speaks in English, people can make it that he is Bengali. Or somebody is Punjabi or South Indian, when they speak in English, people can make it that he is South Indian. So why is it happening? Because we are not pronouncing the English the way it is. Now, what is important? Should we pronounce it appropriately, or should we speak English and we should feel, यार ठीक है, मैं कोई English man तो हूँ नहीं कि मेरे को सारे pronunciation आनी चाहिए. So, of course, मैं एक पंजाबी हूँ, मैं एक South Indian हूँ, तो whenever I'll speak, it's okay यार, लोगों को अगर समझ में आता है मेरे इंग्लिश से कि मैं साउथ इंडियन हूँ या मैं बंगाली हूँ, so it is okay. When I speak English, सबसे important है कि मेरी इंग्लिश well communicated होनी चाहिए. वेल कम्युनिकेटेड का मतलब है कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए. एब्सोल्युटली, दिस इज राइट. सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मैं कोई भी प्रोनाउंसिएशन करूं, सामने वाला मेरा जो बोलना चाह रहा हूं वो इंसान समझे. दैट इज नो डाउट, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. बट साथ ही साथ अगर हमारी प्रोनाउंसिएशन बेटर हो, तो वो तो बेटर ही होगा ना, वो तो खराब तो होगा नहीं. दैट विल बी अ सोने पे सुहागा. दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज. सो आज हम लोग वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे. और ये जो हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ना कोई वर्ड को, इसी को फोनेटिक्स बोलते हैं. फोनेटिक्स का मतलब है हाउ टू साउंड अ वर्ड. हाउ टू साउंड अ वर्ड, फोनेटिक्स. सो आज हम लोग वर्ड के बारे में बात करेंगे, फोनेटिक्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि हम वर्ब को कैसे, कोई भी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करें. डू यू मिसयूज एंड मिसप्रोनाउंस सम वर्ड्स? ऐसा होता है कि आपके साथ कि आप कोई भी वर्ड को मिसप्रोनाउंस करते हो, आपको ही पता नहीं था, शायद कोई आपको हेल्प किया कि भाई इसको ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते, इट इज प्रोनाउंस लाइक दिस. So if it happens with you, then yes, you need this class very much. Do you sometimes find yourself at a loss to express exactly what you mean? हो सकता है you want to say something, but the way you pronounce it, the person is not understanding what you want to say. Even how you pronounce, that matters. It should be well appropriate pronunciation so that people can understand. You know, there are many people, they can't even pronounce a name. Like it could be anything. Like, suppose any word. मैं देखा इंग्लिश का वर्ड अलग है, बंगाली प्रोनाउंस करता है अलग वे से, बिहारी प्रोनाउंस करता है अलग वे से, पंजाबी प्रोनाउंस करता है अलग वे से. सो बट ऐसा नहीं होना चाहिए. लाइक माई नेम, नोबडी नॉर्मली नोज माई नेम एंड नेवर. ऐसा कभी हुआ नहीं कि कभी ऐसा सिचुएशन आया कि मैं अपना नाम किसी के साथ शेयर करूं इंग्लिश के क्लास में. तब बात अभी प्रोनाउंसिएशन की उठी है, तो I would like to tell my name. So my name is Subhash Karthik, as you know, but
Do you know my nickname, anybody? You don't know my nickname. Okay, so I'm writing my nickname in the chat box and I want everybody to pronounce it. And I really want to see how do you pronounce it, okay? My nickname, you know, my father has given. I don't know how and why he has given this name to me. Okay, so this is called, yes, my name. This is my nickname. Okay, so how will you pronounce it? Anyone? Lovi. So one person is saying Lovi. Okay. And you know, Lovi. in Loi. Loi, acha Loi, okay. Okay. Lavi. Sir, I am getting lovey. Acha, so Sandhya ji is saying Lavi. Or is there anything? Lavi. Yes, sir. लोभी मतलब you know in Bengali लोभी का मतलब होता है लालची. नहीं in Hindi. Oh, sorry, lovey. Lovey. He's But English master, so lovey. no, but you know, I'm telling you, in Bengali, so many people say that lobhi, and lobhi का मतलब होता है लालची. You know? That is B, na sir. This is V. Now, हाँ, the we in Bengali we say lobhi, you know, bhi Oh. kind of. Okay, the right. So why I'm telling you this? My father thought in a different way, you know, but every person they use my name in a different way. Okay, and some people they say labi, you know. So the right pronunciation is lovey. I said Come- it, sir. That comes from love. Love से lovey. Yes, Yeah. love से lovey. Lavi. Okay, तो वही मैं बोल रहा हूँ, you know, even sometimes मैं देखा है बहुत लोगों के नाम हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते. होता है कुछ और हम प्रोनाउंस कुछ अलग कर, जैसे अक्षय कुमार. अक्षय कुमार का जो नाम है वो नॉर्मली सभी अच्छे से प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जो बंगाली होता है ना वो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है अक्षय कुमार. अब बंगाली नेवर से अक्षय कुमार, बंगाली से अक्षय कुमार. ओके, जैसे ऐश्वर्या राय. ओके, अब बंगाली प्रोनाउंस इन अ वेरी डिफरेंट वे. मुझे भी यू नो, तो वही मैं बोल रहा हूँ, व्हाई डू वी नॉट प्रोनाउंस द वे वी शुड? Pronunciation is very important. So that is the reason, you know, we will pronounce it so that people can understand me rightly. Do you fail to? Yeah, tell me. No, sir. Even my name, the Bengali calls Sandha. Sandha. Sondha. Like you know, आप लोग आपके सब लोग के जो नाम है ना वो मतलब हर कास्ट के लोग, हर यू नो, वो लोग अलग से ही प्रोनाउंस करेंगे. ओके, चलिए अभी आगे नहीं बढ़ आगे बढ़ते हैं. यू नो, डू यू फेल टू कॉम्प्रिहेंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स? कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना हम लोग प्रोनाउंस कर ही नहीं पाते. ओके, सो उसको भी हम लोग देखेंगे कैसे प्रोनाउंस किया जाता है. आर यू टायर्ड ऑफ हैविंग पीपल सीमिंगली टॉक अबाउट यू? मेनी टाइम्स नो, लोगों को भी पता चल जाता है कि यू नो माई इंग्लिश इज नॉट दैट गुड एंड द वे आई प्रोनाउंस अ वर्ड इट बिकम्स सेंटर ऑफ अटेंशन. मतलब जैसे मैं प्रोनाउंस करता हूँ, इंग्लिश में बात करता हूँ ना, पीपल दे स्टार्ट लुकिंग एट मी, भाई तुम ऐसे तो मत ही बोलो इंग्लिश. सो गाइस, टुडे विल टॉक अबाउट प्रोनाउंसिएशन कीज. प्रोनाउंसिएशन कीज, दिस कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास ये कीज हैं, अगर आप किसको बोलने के समय या लिखने के समय यूज करोगे, स्पेसिफिकली बोलने के समय, देन यू कैन प्रोनाउंस इट राइट वे. सो आज हम लोग बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन कीज के बारे में. फ्यू सिंबल्स टू बी प्रैक्टिस्ड एंड अंडरस्टूड. कुछ ऐसे सिंबल्स हैं, आप जब कभी प्रोनाउंस करने जाओ कोई भी वर्ड को, तो उसको अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करके उसको बोलना पड़ेगा आपको. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. सबसे पहला जो प्रोनाउंसिएशन की है, आप कैसे प्रोनाउंस करोगे, उसके लिए हमें प्रोनाउंसिएशन कीज की आवश्यकता है. वी नीड दैट. तो ये एक सबसे पहला प्रोनाउंसिएशन की है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वा. स्क्वा. स्क्वा, it indicates a weak and neutral vowel sound occurring in most of the unstressed syllables in English. जैसे आप देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं,
alone, alone, happen, circus. तो यहाँ पे जो येलो कलर में ए है, ई है, यू है, इसका जो साउंड है ना, वो प्रॉपरली वावल की साउंड नहीं दे रही है. जैसे ए लोन, ए जैसा साउंड नहीं हो रहा है. अलोन. हैपन में जो ई है, वो ई का साउंड हमें पता नहीं चल रहा है. हैपन, हैपन, वो ई का साउंड थोड़ा डिम है, थोड़ा वीक है. सर्कस, आप ही देखो यू, लेकिन यू का जो साउंड है, दैट साउंड इज वीक. सर्कस, वीक साउंड मतलब ना, वो कोई पर्टिकुलर वावल का साउंड नहीं देगा. जैसे पर्टिकुलर वावल का साउंड क्या होता है? ए, ई, आई या ई, ये सब है वावल साउंड. तो जब भी ये स्क्वा, ये जो स्क्वा है, ये जो आप देख रहे हो स्क्वा, नंबर 1 के बगल में स्क्वा, अगर कभी भी कोई भी लेटर के ऊपर आप इसे देखते हो, इफ यू सी स्क्वा एनीवेयर, इसका मतलब होता है वो लेटर का जो साउंड होगा वो वीक होगा, ज्यादा हम उसको जोर से साउंड नहीं करेंगे. आप देखो ना, अलोन में ए का जो साउंड है, कहीं ना कहीं वो लोन के साथ मिक्स हो गया है. ए का अपना साउंड नहीं है. जैसे एप्पल में हम लोग एप्पल, ए का साउंड लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो अलोन, वो ए एंड एल जैसे मिल गया है. अलोन, वो ए का साउंड वीक हो गया, उसका अपना जो वावल साउंड होता है ए या एप्पल. सो यहाँ पे वो ए या ए का साउंड ही नहीं है. हैपन में जो ई है, ई का भी अपना साउंड नहीं है, वीक साउंड है. सो कभी भी व्हेन यू सी स्क्वा, ये प्रोनाउंसिएशन की है, कभी भी आप इसे देखो तो वो पर्टिकुलर लेटर को ज्यादा आप एम्फसाइज या ज्यादा जोर से उस साउंड को आप नहीं यूज करोगे. दैट इज कॉल्ड स्क्वा. सी दिस प्रोनाउंसिएशन, आप इफ यू नो, इट विल बी बेटर इन फ्यूचर. ओके, ये जो नंबर 2 है जो सिंबल, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन की. ये देखो, अब गो के बगल में ओ है, एन के बगल में ओ है, एल ओ डब्ल्यू है, एस ओ है. यहाँ पे जो ओ ओ ओ ओ आप देख रहे हो, इसका मतलब है जो गो, जो ओ का साउंड है वो एक्सपैंड नहीं हो रहा है, बस ओ करके वो स्टॉप हो जा रहा है. जैसे गो, नो, लो, सो, मतलब साउंड इज कमिंग एंड स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग, मतलब वो एक्सटेंड नहीं हो रहा है. जैसे गो, ये एक्सटेंड होता है. गो, लो, ऐसे हम लोग बोलते नहीं है. हम लोग बोलते हैं गो, नो, लो, सो. तो ये जो आप सिंबल देख रहे हो, ओ ओ के ऊपर एक हॉराइजॉन्टल एक लाइन है. तो ये अगर कभी कोई लेटर, कोई ओ के ऊपर अगर ऐसा सिंबल होता है, तो आप उसे उसका जो साउंड है, आप उसको लंबा नहीं खींचोगे या एक्सटेंड नहीं करोगे साउंड को, एकदम साउंड को बोल के छोड़ दोगे. जैसे गो, नो, लो. कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिएगा. अब जो एग्जाम्पल है, ये सी दीज आर द प्रोनाउंसिएशन की, ये आपको याद रखना पड़ेगा. आप जब डिक्शनरी में देखोगे आपको ये सब सिंबल दिखेंगे, तो इससे आप राइट प्रोनाउंस कर पाओगे. What is called, sir? दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन कीज. इसे प्रोनाउंसिएशन कीज बोलते हैं. जैसे पहला वाला था स्क्वा, Oh, yeah. इसको ठीक क्या है, बोलते वो उल्टा टाइप का ई होता है देखने में. Yeah. ये है, ये एक सिंबल है. ये सिंबल को आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सिंबल कभी भी आए, कोई भी ओ के ऊपर अगर ये सिंबल दिखे, इसका मतलब है कि उसका साउंड एक्सटेंशन नहीं होगा. अब ये देखो, अगर डबल ओ के ऊपर में एक हॉराइजॉन्टल लाइन लगा हो, ये अगर ऐसा सिंबल हो आपके पास, इसका मतलब है ये साउंड एक्सटेंड होगा. फूल, सून, नून, हम ऐसे नहीं बोलेंगे फुल, सुन, नून, ऐसे नहीं बोलते. फूल, वो साउंड एक्सटेंशन हो रहा है, हम साउंड को एक्सपैंड कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं. फूल, सून, नून. लेकिन इसका पहला वाला में कोई एम्पलीफिकेशन नहीं था. बट थर्ड में जो है, डबल ओ के ऊपर में एक हॉराइजॉन्टल लाइन है. अगर कभी भी आपको कोई ओ के ऊपर ऐसा प्रोनाउंसिएशन की दिखता है, इट मींस
वहां पे एम्प्लीफिकेशन होगा. These are some pronunciation keys. See, I'm not telling कि इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है, लेकिन कोई वर्ड को सही से यूज करने के लिए ये प्रोनाउंसिएशन कीज जानना है. मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि आई शुड स्पीक इन इंग्लिश एंड द पर्सन होम वी आर स्पीकिंग दैट पर्सन शुड अंडरस्टैंड. लेकिन अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन कीज, मतलब अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बेटर हो, इट विल साउंड बेटर, राइट? आप बहुत देखोगे, बहुत लोग जब वो इंग्लिश में बात करते हैं ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो बिहारी है कि बंगाली है कि मराठी है, एक पंजाबी है, because they speak English the way it should be spoken. And you know, Indians are very good. मतलब देखा गया है कि most of the Indians, they speak English very rightly and with a very appropriate sound. Because क्या होता है ना, इंग्लिश हम मैंने इंडियंस दे बहुत कल्चरल एक्टिविटीज में भी होते हैं, उनको बोलने की आदत है, एंड वेरी गुड गुड स्पीकर्स आर देयर इन इंडियन कल्चर. लेकिन आप देखोगे, आप साउथ अफ्रीका जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, अमेरिका जाओगे, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो टोटली अलग है. नाइजेरियन पीपल के पास देखोगे, वो अच्छा इंग्लिश बोलेंगे, बट देयर प्रोनाउंसिएशन इज टोटली डिफरेंट, और उनको एक सही प्रोनाउंसिएशन देना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. बट इंडियंस, दे हैव वर्सेटाइल साउंड, दे हैव गुड साउंड. इंडिया का जो साउंड होता है ना, दे कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश इफ दे रियली वांट. The sound of S is, One thing I want to know. yeah, please ask me. So that is, thank you so much. That the so is expanded or only so? S-O, this is expanded so. You don't say that thank you so much. So much. Yeah. Thank you Yes. so much. So Yes. थोड़ा सा expand हो रहा है. Yes, Okay. absolutely. Okay. Okay, यहाँ पे देखो ZH, इसे बोलते हैं ZH साउंड, मतलब ज ज. जहाँ पे कुछ वर्ड्स है देखो, ओकेशन, ट्रेसर, मेजर, लीजर, यहाँ पे एस यू या एस आई, जो जो स का साउंड है ना, वो ज का साउंड होना चाहिए जब आप इंग्लिश में बात करो. ओकेसन नहीं. बहुत लोग बोलते हैं अरे ओकेसन में चलना है. ओकेसन में चलना नहीं है, ओकेजन, ओकेजन. ओके, बहुत लोग बोलते हैं ट्रेजर कहाँ है, ट्रेजर, ज होगा. एस यू को ज बोलेंगे हम लोग. स्पेलिंग में एस यू लिखेंगे, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ज का होगा, ज. अरे मेजर कर लो, मेजर कर लीजिए, मेसर कर लीजिए, नहीं, मैं ज. लीजर, लीजर. तो ये जो एस यू आर ई जहां जहां होता है ना, सर सर या ओकेजन, यहाँ पे हम लोग ज का साउंड देंगे, जन, जन. ओके, जेड एच साउंड होगा वहां पे. सो दीज आर द प्रोनाउंसिएशन कीज. ये एग्जांपल्स भी आप चाहो तो लिख के रख सकते हो, आपके दिमाग में रहेगा. Sir, what is the ओकेजन, sound, sir? z. Z. Yes, z. Z. Yes. Okay. Occasion, treasure, measure, leisure. Okay. हो सकता है बहुत लोग इसे एक दिन में साउंड ना कर सके. Some people they may need some time, but प्रैक्टिस करने से हो जाएगा. Okay. अब यहाँ देखो, वो हम लोग देखा था 2O के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल था लाइन. अब देखो यहाँ पे जो लाइन है वो कर्व लाइन है, डबल O के ऊपर कर्व लाइन. सो ये कर्व लाइन जब होता है तो उसे हम लोग यू का साउंड देते हैं और उसे एक्सपैंड नहीं करते. बुक, लुक, द साउंड विल बी यू, यू का साउंड होगा और साउंड में एक्सटेंशन नहीं होगा, लाइक बुक ऐसा नहीं होगा. बुक, लुक, नो एक्सपेंशन. Okay, so this is also one kind of pronunciation key. Okay, we'll go for the sixth one. SH and SHEE. The sound of TI and CI. अगर कोई भी वर्ड में TI है या CI है तो वहां पे हम साउंड करेंगे श का, श. TI टी का साउंड नहीं करेंगे. जैसे स्टेशन, स्टे टन या स्टेशन नहीं, स्टेशन,
एक्शन स्पेशल। तो CI है बोल के CL नहीं होगा, शल। TI है मतलब टियन नहीं होगा, एक्टियन नहीं होगा, वो एक्शन। म्यूजिशियन, तो दैट साउंड विल कम एज SH, शी, और SH EE। कुछ कुछ वर्ड्स है जहां पे TI या CI से सेंटेंसेस मतलब वर्ड्स बनते हैं, वहां पे आप उसका जो प्रोनाउंसिएशन की होगा वो SH या SHEE का होगा। एक्शन, स्टेशन, स्पेशल, म्यूजिशियन। ओके, विल गो फॉर द नेक्स्ट। जी, बहुत समय हम लोग देखेंगे JEE होता है, ये जैसे बायोलॉजी, एपोलॉजी, ये जो GY है लास्ट में, GY के जगह में हम लोग JEE का प्रोनाउंस करेंगे, JEE का प्रयोग करेंगे, लाइक दैट बायोलॉजी। सो यहाँ पे जो GY है उसका जो प्रोनाउंसिएशन की है वो है JEE का। बायोलॉजी, एपोलॉजी, एलर्जी। सो GY का जो प्रोनाउंसिएशन की होगा वो है JEE। Okay, let's go for the next one. Okay, key, KEE is a one pronunciation key, KEE। आप देखोगे बहुत सारे सेंटेंस में, बहुत सारे वर्ड्स में लास्ट में रहता है CHAE, CHAE। जैसे आप यहाँ पे देखो, नीचे दो दो वर्ड्स आप देख सकते हो। तो जब भी CHAE होगा उसका जो प्रोनाउंसिएशन की होगा वो होगा की, KEE की। उसका स्पेलिंग जो है वही है, ये हम जो बात कर रहे हैं वो है प्रोनाउंसिएशन की। सो ये साउंड न्यू काई कॉन्काई नहीं होगा ये होगा न्यूकी कॉन्की, न्यूकी कॉन्की। तो कोई भी वर्ड में अगर आपको CHAIAE दिख जाए तो आप ऐसा मत उसको प्रोनाउंस कीजिए कि न्यू काई कॉन्काई, ऐसा नहीं। तो वो सामने वाला थोड़ा समझ जाएगा कि वी आर नॉट गुड। तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो की होगा, साउंड न्यू की कॉन्की। ये हमारे ईयर्स के अंदर कुछ जगह है जिसको हम लोग न्यू की एंड कॉन्की बोलते हैं। दिस इज रिलेटेड टू आवर ह्यूमन बॉडी, आवर ईयर्स। अब इसको डिक्शनरी में बाद में भी देख सकते हो। सो ओके, एक और प्रोनाउंसिएशन की देखेंगे, AHR, R, AHR, R, R। कोई भी जब भी कोई भी वर्ड्स में जहां पे AR का यूज होता है, जैसे आर्मी, आर्डेंट, आर्ट, वहां में जो AR का प्रोनाउंसिएशन होगा वो R नहीं होगा, वो R होगा। मतलब एक H बीच में आ जाएगा, ऐसा साउंड आना चाहिए, R, आर्मी। ऐसा नहीं कि आर्मी, आर्मी। आर्डेंट, आर्डेंट नहीं, आर्डेंट नहीं, आर्डेंट। आर्ट नहीं, आर्ट। लगना चाहिए कि जैसे वहां पे बीच में एक H बैठ गया हो, आर्ट। So AHR is another pronunciation key. Ardent, ardent, art. So what is the meaning of ardent? Ardent का मतलब क्या होता है? If I say Poonam is an ardent girl, अगर if I say Kanchan is a very ardent person, or Prashanti is so ardent lady, what is the meaning of ardent? The meaning of ardent is passionate person, enthusiastic person, मतलब बहुत एनर्जी है उस इंसान के अंदर, पैशनेट पर्सन। सो ये एक वर्ड आप लोग ने आज सीखा, आर्डेंट। सो यू कैन यूज दिस वर्ड इज रियली वेरी नाइस। ही इज अ वेरी आर्डेंट पर्सन। आर्डेंट पर्सन मतलब पैशनेट पर्सन, आर्डेंट। ओके, टिल नाउ इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। हम लोग एक प्रोनाउंसिएशन की पूरे एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन की निकालेंगे, तब और ज्यादा मजा आएगा। ओके, One thing. या टेल मी।
TI, CI, and one thing SI. SI, sun. Yes, sun. SH. sh का यूज होगा That वहां. is also sure. Yes. TI, CI, and SI. Yeah. Hmm. Okay, sir. TI and CI श का साउंड होगा. ओके, कहीं भी आप देखोगे NA या SA या TA जैसा एक साउंड आता है, जैसे ने, से, टे, के, तो वहां पे अब लोग एक Y को प्रोनाउंसिएशन की में ऐड कर सकते हैं. मतलब सपोज कोई भी वर्ड में NA है, कोई भी वर्ड के एक सिलेबल, वर्ड को जब हम लोग डिवाइड करते हैं ना तो वो सिलेबल में हो जाता है. तो कोई भी एक सिलेबल में सपोज NA है या SA है या TA है या KA है, तो वहां का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, हम लोग जब प्रोनाउंस करेंगे तो वो ने, से, थे, मतलब वहां पे एक Y को हम लोग इमेजिन करेंगे एज अ प्रोनाउंसिएशन की उस पर्टिकुलर सिलेबल में. ये हम लोग करेंगे जब आपको समझ में आएगा ज्यादा. अभी इतना ही समझिए कि कभी भी हम अगर कोई वर्ड को सिलेबल करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं ना कभी कभी, जैसे विंडो, 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 सो ये सिलेबल है, विन एक सिलेबल है, डो एक सिलेबल है. तो वैसे ही अगर कोई सिलेबल में NA है या SA है या TA है, तो वहां पे हम एक Y को इमेजिन करेंगे कि वो है, और साउंड उसका हो जाएगा ने, से, थे, खे, लाइक दैट. Sir, what Yeah. is the meaning of syllable, sir? सिलेबल, विल टॉक अबाउट इट. सिलेबल मतलब होता है जैसे एक वर्ड होता है ना, वर्ड को हम लोग प्रोनाउंस करने के समय उसको डिवाइड करते हैं. Means जैसे like will chunk like the word. हाँ, Chunk the word. like pencil. So there are two syllable, pen, Pen, sil. sil. So pencil. So these are syllables. Okay. So this is number 10. Okay. Now I will ask you one thing. यहाँ पे एक word आप देख रहे हो, PYROMANIAC. So I just want to ask Poonam, how will you pronounce this word? Pyromania. Sir, this is pyromaniac. 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 Okay, Sandhya ji? Pyromaniac. Pyromaniac. Prashanti, will you try? Pyromaniac, sir. Okay. Smriti, how will you sound this? Pyromanic. Manic. Okay. So see, we all are speaking in a different way. So अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमने pronunciation keys हमने सीखा है, उस pronunciation key को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे. शायद उससे हमारा जो right pronunciation key है वो निकल के आ जाए. Okay. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग अच्छे सुनिए इसको. Whenever we pronounce anything, जब भी हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ना, तो एक होता है प्राइमरी एक्सेंट, एक होता है स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सेंट. मतलब सॉरी, प्राइमरी एक्सेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सेंट एक ही चीज होता है. प्राइमरी एक्सेंट और एक होता है सेकेंडरी एक्सेंट. कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी एक्सेंट एंड सेकेंडरी एक्सेंट? प्राइमरी एक्सेंट का मतलब होता है सर्टेन सिलेबल को हमें जोर से बोलना है, स्ट्रॉन्ग बोलना है, और दूसरे सिलेबल को हमें थोड़ा आस्ते बोलना है. दैट इज अ सेकेंडरी सिलेबल, ए सेकेंडरी एक्सेंट. जैसे पेंसिल, पेंसिल, पेंसिल में जो पेन है, PEN है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सेंट होगा, और जो सिल है वो सेकेंडरी एक्सेंट होगा. मतलब पेन का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा जोर से होगा और सिल का थोड़ा आस्ते होगा. पेंसिल, पेंसिल, ऐसा नहीं कि पेंसिल, पेंसिल, ऐसे नहीं होगा. पेंसिल, पेन में स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सेंट होगा और सिल में थोड़ा वीक होगा या सेकेंडरी एक्सेंट होगा.
Many are stressed on more than one syllable, although only one syllable may receive the primary or strongest action. अब क्या हो रहा है, जब मैंने आप लोगों को बोला, when I told you कि इसको प्रोनाउंस कीजिए, तो आप नॉर्मली अपना दिमाग लगा के पाए पाए रो करके आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको खुद भी नहीं पता कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सेंट है, कौन सा सेकेंडरी एक्सेंट है। मतलब सबसे ज्यादा हम कहाँ पे ज्यादा फोकस करें या कहाँ पे ज्यादा फोर्स दे और कहाँ पे थोड़ा कम फोर्स दे। सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा सही? यू विल कम टू नो दैट। ओके, देयर आर टू सिलेबल PY एंड MA। PY और MA जो है, इसमें से एक प्राइमरी एक्सेंट होगा और एक सेकेंडरी एक्सेंट होगा। पाई एंड MA, ये दोनों में एक प्राइमरी एक्सेंट होगा, एक सेकेंडरी एक्सेंट होगा। यहां पे जो मैं दिखा रहा हूं ना, MA, ये कैपिटल में इसलिए लिखा है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इसका जो एक्सेंट होगा वो प्राइमरी होगा, कैपिटल में है। व्हेन आई राइट एनी वर्ड विद अ प्राइमरी, मतलब कैपिटल कर दिया उस जगह को, इसका मतलब है कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन आएगा वो स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा। कैसे होगा? एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे जा रहे हैं। और जो PY है वो थोड़ा वीक होगा। आप कैसे समझोगे कौन सा प्राइमरी है? तो कैपिटल वाला प्राइमरी है, MA. और जो PY में वहां पे हम लोग एक कॉमा हमने दिया है, इसका मतलब वो कैपिटल में नहीं है, इसका मतलब है वो सेकेंडरी है। मतलब MA में हम ज्यादा एक्सेंट को स्ट्रेस करेंगे, उसके बाद हम PY को स्ट्रेस करेंगे, और बाकी जो है उसको हम लोग नॉर्मली बोलेंगे। सो इसका जो प्रोनाउंसिएशन की होगा कुछ ऐसा होगा। अभी जो आप देख रहे हो, दिस इज नॉट द स्पेलिंग, हाँ, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन की। स्पेलिंग जो आपने लिखा है ऑलरेडी वो दैट इज अ स्पेलिंग, बट यहाँ पे आप देखो, ये जो अभी आप देख रहे हो स्क्रीन में, दिस इज प्रोनाउंसिएशन की। इसीलिए आप देखो MA के बगल में वहां पे एक Y आ गया। हमने बोला था ना एड Y, अगर आपको याद है, एक प्रोनाउंसिएशन की में हमने बोला था एड Y। Yes, yes, last time. Yes. राइट, ओके। सो यहाँ ये दिस इज द प्रोनाउंसिएशन की, तो ऐसा मत सोचिए कि स्पेलिंग चेंज हो गया, स्पेलिंग वही है जो पहला लिखा गया। अभी हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग ये प्रोनाउंसिएशन की को लिखे हैं। तो मे को हम लोग ज्यादा प्रोनाउंस करेंगे। अब ये मैं नहीं है, मे हो गया अभी, क्योंकि वाई ऐड हो गया वहां पे एज अ प्रोनाउंसिएशन की। सो ये पाए रो मैं विल बी हैविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सेंट। पायरो मैनियाक, पायरोमैनियाक, पायरोमैनियाक, पायरोमैनियाक। सो मैं का जो प्रोनाउंसिएशन होगा दैट विल बी हायर, इसीलिए वो कैपिटल में हमने लिखा है, कैपिटल देन कॉमा, और पाई में हमने एक सिर्फ कॉमा लगाया है, मतलब सेकेंडरी एक्सेंट होगा वो। पायरो, पायरोमैनियाक, 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 पायरोमैनियाक। सो यहाँ पे स्पेलिंग चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे NI जो है वो NEE हो गया है, और जो लास्ट में AC है वो AK हो गया है एज अ प्रोनाउंसिएशन की। तो ये है प्रोनाउंसिएशन की ऑफ पायरोमैनियाक, पायरोमैनियाक। तो ये है फोनेटिक साउंड, पायरोमैनियाक। Okay, so now I want to ask you, what is the meaning of pyromaniac? Any idea? Pyro, what is the meaning of pyro? Pyro आप सुने होंगे, आपको अभी दिमाग में नहीं है। पायर, पायर, आग, आग, पायर, फायर। पायरो मतलब होता है आग, और मैनियाक का मतलब होता है एक काइंड ऑफ एक हैबिट। बहुत लोग हैं जिसको आग, चीजों में आग लगाने में अच्छा लगता है उसको,
उसको लगता है कि इसको जला देते हैं, इसको जला देते हैं, यार ये इंसान है इसको भी जला देते हैं, अरे यार ये सोफा है इसको जला देते हैं, कोई मोबाइल दिखा इसको जला देते हैं. दिस इज अ वेरी डेंजरस डिजीज. वी कॉल इट पायरोमैनियाक. अगर हम बोलते हैं कि यू नो ही इज पायरोमैनियाक, ये एडजेक्टिव है. अगर मैं बोलूं यू नो मिस्टर XYZ is a pyromaniac person. पायरोमैनियाक मतलब उसको आग से खेलने में या लो चीजों को आग लगाने में अच्छा लगता है. वी कॉल इट पायरोमैनियाक. सो ये भी एक वर्ड आज आपके डिक्शनरी में चला गया और हमने इस वर्ड में इतना टाइम दिया, आई डोंट थिंक कि आप इसे भूल जाओगे. पायरोमैनियाक. पायरोमैनियाक इज अ हैबिट ऑफ यू नो मेकिंग फायर और क्रिएट नो किसी चीज पे फायर लगाना या आग लगाना. सर लिटरली आग लगाना या बातों से भी आग लगाना? नहीं, बातों से नहीं, ये वो वाला बात वाला आग नहीं है, सच में आग है. It's a disease. हाँ, दिस इज अ रियल फायर. रियल फायर. आप बहुत लोगों को बहुत कुछ होता है ना आदत, ये बहुत लोग यू नो आप देखोगे पेट्रोल सूंघता है, बहुत लोगों को बहुत सारी आदत होती है. तो वैसे ये जो इंसान है ये लोग को जलाने का आदत है. बाई चांस अगर ऐसे लोगों के साथ आपका कोई भी संबंध है तो काफी डेंजरस है ये लोग इंसान, यू नो. सो these are very dangerous people, pyromaniac people. These are pyromaniac people. Okay, तो चलिए यहाँ तक तो मेरा काम था. अब आपको मैं कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ, आप लोग बताओगे कि इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे. तो नाउ यू ट्राई. यहाँ पे पहले तो ये 4 वर्ड्स लिखें अपने कॉपी में और चारों वर्ड्स में ना गैप रखें. एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में गैप लिखे ताकि उसका मीनिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन की, ये सारा कुछ आप लिख पाओ. ठीक है. सो फर्स्ट वर्ड लिखे, उसके बाद थोड़ा जगह रखे, फिर सेकंड वर्ड लिखे, जगह रखे, फिर थर्ड वर्ड लिखे, जगह रखे, फिर फोर्थ वर्ड, फिर जगह रखे. सो आज हमने ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड्स को सीखा. सबसे पहले हमने आर्डेंट को सीखा, देन वी लर्न पायरोमैनियाक, देन वी हैव लर्न मेनी प्रोनाउंसिएशन कीज हमने सीखा. अब आपने जो सीखा उसको अभी यूज करना है. तो द फर्स्ट वर्ड, ये फर्स्ट वर्ड को आप कैसे साउंड करोगे प्रशांति? एक काम करते हैं, आप लोग लेट वर्ड तो लिखे, उसके नीचे लिखने का कोशिश करो प्रोनाउंसिएशन की के हिसाब से. ठीक है. आई एम गिविंग यू 4 वर्ड्स है, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम. आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन की कि कौन सा हाई एक्सेंट में होगा, कौन सा सेकेंडरी एक्सेंट में होगा, वैसे लिख के यू ट्राई टू डू इट. जितना भी गलती हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू यूज योर माइंड एंड मेक द प्रोनाउंसिएशन की. फिर हम उसको सच जो रियल प्रोनाउंसिएशन की है वो क्या होगा वो भी बताएंगे, और इसको आप कैसे सेंटेंस में यूज करोगे ये भी हम लोग बताएंगे. सो राइट नाउ या वी विल गो फॉर द फर्स्ट वर्ड. द फर्स्ट वर्ड में आप देखो SA है. SA तो हो सकता है, हमें याद है एक प्रोनाउंसिएशन की हमने किया था, SAY को हमने इमेजिन किया था, ऐड She. किया था. सो से, फिर TI शी हो जाता है, SH हो जाता है, से शी. Satiated. सर सैटिटे सैट टी तो होगा नहीं, TI को हम लोग SH बोलते हैं. सर satiated. आप याद करो Satiated. TI हमने किया है कहीं पे, या देखो यहाँ पे TI Yes, और sir. CI को हमने SH या SHE किया है. Satiated. Satiated. सा नहीं, से बिकॉज SAY है यहाँ पे, Say. SAY है. प्रोनाउंसिएशन की में SAY होना चाहिए. आई विल शो यू द प्रोनाउंसिएशन की. सो इट विल बी satiated, 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 satiated. I will show you the pronunciation keys. See, this is the pronunciation key. आप लोग लिख लो इसको. Try to write the pronunciation key so that you can speak. SAY will be in capital, and why it is capital you must be knowing this. Sir? Why it is capital you should be knowing, because of the primary accent. Then we have AY में कॉमा है, मतलब वो सेकेंडरी एक्सेंट, मतलब SAY के बाद AY पे सेकेंडरी एक्सेंट होगा. तो she, a, ted.
और देखो वहां पे स्क्वा है, स्क्वा इज देयर, स्क्वा मतलब होगा वो TNED में जो ई जो स्क्वा है उसका प्रोनाउंसिएशन वीक होगा, ना ए साउंड होगा, ना ई साउंड होगा, ना आई साउंड होगा, वावल साउंड नहीं होगा, टेड, इट विल बी लाइक टेड, से शी ए टेड, से शी ए टेड, सेशिएटेड, से का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो हाई होगा, सेशिएटेड। Sir, instead of TI, like, we have to be use the it's like a phonetics what SH or SHEE. यहाँ पे But how we no, how we'll know that, like, whether it will come, because I have written SH. You said that SHEE. So how we will know that, like, which will come? सी फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज, बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने कि हमें पता कैसे चलेगा कहाँ पे SH या कहाँ पे SHE, कौन सा प्राइमरी साउंड होगा, कौन सा सेकेंडरी साउंड होगा, हाउ विल आई नो दिस। सी, जब एक बच्चा जन्म होता है ना तो उसका नाम उसके पेरेंट्स ही रखते हैं, बाहर वाले नहीं रखते हैं, ठीक है। तो जब एक वर्ड पैदा होता है ना तो वो वर्ड जो इंस्टीट्यूशन बनाती है वो डिसाइड करती है कि कौन सा प्राइमरी एक्सेंट होगा, कौन सा सेकेंडरी एक्सेंट होगा, किस में SH होगा, किस में SHEE होगा। ऑलरेडी दीज आर मेड, ये सब बना हुआ है, आप अलग से नहीं बना सकते उसको। We have to follow this, we cannot create this, we have to follow this, we should know this, so we cannot make it, जैसा है we have to follow this। तो आप इसको बना नहीं सकते कि यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है तो SH हो या SHEE हो। जैसे आज आपको पता चला कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड में SHEE होगा, यही आपका लर्निंग है, इसको आप मत भूलिएगा। I have not created this, it has been already created, you have to remember, okay? So satiated, okay, इसका जो मीनिंग है ना उसमें हम लोग बाद में आते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखो, how will you sound the second word? Archaeology. 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 all में प्रोनाउंसिएशन हाई पिच में होगा, archaeology। जो स्क्वा है उसका साउंड ज्यादा जोर से नहीं आएगा, स्क्वा का साउंड आएगा ही नहीं बोलने से, मतलब archaeology, आर्कियोलॉजी नहीं, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, जियोलॉजी। तो लॉजी नहीं होता है, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। सर आपने ZH बोला था कहाँ पे? बायोलॉजी का प्रोनाउंसिएशन जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे ZH बोला था ना? नहीं, एक मिनट, मैं फिर से जाना चाहूंगा वहां पे। यहाँ पे तो कहीं पे ZH की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो है GY। जहाँ पे होगा वहां पे JEE का साउंड आएगा, मैंने ये बोला था। तो वहां पे आर्कियोलॉजी में क्या था? GY है, इसीलिए हमने वहां पे JEE को किया। तो द साउंड देखिए AHR हो गया, यहाँ पे वो एक आ गया, की आ गया, KEE आ गया, OL आ गया, यहाँ पे एक स्क्वा ऐड हो जाएगा। स्क्वा का प्रोनाउंसिएशन जोर से नहीं होगा, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। वो जो स्क्वा है उसको हम लोग ना ई साउंड करेंगे, ना ए साउंड करेंगे, ना आई साउंड करेंगे। वो जगह थोड़ा साउंड को हम लोग डिम कर लेंगे, थोड़ा वीक साउंड देंगे। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब देखो बायोलॉजी को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी। वहां पे एक स्क्वा रहेगा लेकिन उसको हम लोग थोड़ा डिफरेंट वे से प्रोनाउंस करेंगे, बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी। आई लव बायोलॉजी, यू नो, आई लव बायोलॉजी नहीं, आई लव बायोलॉजी। ठीक है, समय लगेगा पहले तो उसे एक्सेप्ट करने में,
और सामने वाला समझेगा कि नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कभी कभी ना हम लोग देखना, हम लोग कोई मूवीज देखते हैं ना, तो वो लोग जैसे इंग्लिश बोलते हैं, हमें इंग्लिश आता है, लेकिन द वे दे स्पीक वी समटाइम्स डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज देयर प्रोनाउंसिएशन इज टोटली डिफरेंट। दे आर सेइंग बायोलॉजी, और हम सोच के बैठे हैं तो बायोलॉजी तो बोला नहीं, तो दे डोंट स्पीक लॉजी, दे स्पीक बायोलॉजी। आपको समझ जाना पड़ेगा। अब समझेंगे कैसे? आपको प्रोनाउंसिएशन की दिमाग में रहेगा तभी ना। हाँ हाँ, आई हैव लर्नड बायोलॉजी। ओके ओके फाइन। नेक्स्ट इज, अच्छा नेक्स्ट वाला वर्ड को आप कैसे प्रोनाउंस करोगे, मैं जानना चाहूंगा संध्या जी से। थर्ड वाला जो वर्ड है, Opinionated. opinionated. Okay, Poonam, how will you pronounce opinionated? Sir, opinionated. Opinionated. Yeah, Kanchan, will you try? कंचन जी आप ट्राई करोगे कैसे थर्ड वाला जो वर्ड है उसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? Opinionated. 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 Okay. Prashanti, how will you pronounce it? अरे भाई ओपिनियोनेटेड तो होगा ही नहीं, बिकॉज देर इज अ स्क्वा। स्क्वा अगर है मतलब कोई भी वावल साउंड नहीं आएगा, ना ए ना ई ना ओ, वीक साउंड होगा, मतलब वो साउंड ना के बराबर होगा। और उसके बाद पिन, पिन में प्राइमरी एक्सेंट है, मतलब पिन हाई हो जाएगा, फिर य ने टेड। सो बेसिकली द साउंड विल बी opinionated. Opinionated. Opinionated नहीं, opinionated. 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 Not opinionated नहीं, opinionated. O use नहीं होगा, opinionated. Simple. Opinionated. Yeah, any question? Sir, O would be silent, sir, here in this हाँ, word. O will be silent ना, O का जो साउंड होगा बहुत डीम होगा, वो O जैसा साउंड नहीं आना चाहिए। ना Okay. ओ का साउंड Squash. आएगा, ना ई का साउंड आएगा, ना ए का साउंड आएगा, दैट इज स्क्वा। स्क्वा मींस एकदम लो वीक साउंड। ओपिनियनेटेड ओ होगा, लेकिन इतना का आस्ते ओ बोलोगे आप कि वो सुना ही नहीं देना चाहिए। ओपिनियनेटेड। Sir, some words like some letters are like silent. In that word, we It is can not what we can say. silent, it is not silent here, it is the sound is very weak। आप ओ बोलोगे लेकिन ओ लोगों को सुनना नहीं है। जैसे मैं भी ओ बोल रहा हूं, देखिए आपको किसी को समझ में नहीं आएगा मैं ओ बोल रहा हूं। ओपिनियनेटेड। ओपिनियनेटेड, वो ओ को मैं इतना जल्दी और इतना डिम साउंड में बोल रहा हूं कि आपको ओ समझ में नहीं आएगा। ओपिनियनेटेड। Opinionated. यस, ओपिनियनेटेड। ओपिनियनेटेड इज अ वेरी नाइस वर्ड। इसके मीनिंग में जाएंगे हम लोग। लास्ट वाला तो मेरा फेवरेट है, आपको भी अच्छा लगेगा। प्रोनाउंसिएशन कीज को लिखोगे तो उसको प्रोनाउंस करने में आपको इजी होगा। तो कैन एनीबडी टेल मी द प्रोनाउंसिएशन हियर? Braggadocio. 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 Shit. Braggadocio. Braggadocio. हाँ, तो अब देखो किसमें हाई पिच होगा, डो में हाई पिच होगा, ब्रैग में थोड़ा सा कम होगा, ब्रैग। अब ई को भी साउंड डिम होगा, ब्रैगर डो शी ओ, ब्रैगडोशियो। वो ओ एक्सटेंशन नहीं होगा, एम्पलीफाइड साउंड नहीं होगा। ब्रैगडोशियो, ब्रैगडोशियो, ब्रैगडोशियो। ये वर्ड कभी आपने सुना है, ब्रैगडोशियो? No, sir. No, sir. वेरी नाइस Very वर्ड। Braggadocio. Yeah. What does it mean, sir? Okay, I'll tell you one by one all the meanings. Satiated का मतलब होता है, satiated का मतलब होता है satisfied, highly satisfied। हम लोग अभी तक satisfy को एज अ वर्ब यूज करते हैं, satisfy। तो अब जहां जहां आप satisfy यूज करते हो वहां पे आप satiated यूज कर सकते हो। satiated, Satiated. satiated। Sir, Yeah.
Sir, I have to ask one thing. Sir, what Yeah. I am thinking is like today we will learn only 4 to 5 words, but the dictionary is full of words, sir. So how we will learn all? Because there नहीं, is totally change. Today onward, there will be Yeah, change. Poonam ji, see, today we cannot learn everything in a one place. आप लोग में बहुत जन है जिनको शायद प्रोनाउंसिएशन कीज का आइडिया था ही नहीं, ये स्क्वा क्या होता है, राइट? तो हर चीज आप मेरे से नहीं सीखोगे। हमारे पेरेंट्स हमें, हमारे लाइफ में हमने बहुत एक्सपीरियंस किया है, सब हमारे मम्मी पापा ने हमें नहीं सिखाया है, लेकिन एक ऐसा एक स्टार्ट दिया है, उसके बाद हमने लाइफ में सब कुछ अपने ही सीखा है। सो मैं आपको तो सारा लाइफ में कैसे चलना है नहीं सिखा सकता, लेकिन आज मैं आपको ये बताया कि प्रोनाउंसिएशन में प्रोनाउंसिएशन कीज का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो सपोज इन फ्यूचर आप कभी भी कोई डिक्शनरी लेना, तो ऐसा डिक्शनरी ले जिसमें प्रोनाउंसिएशन कीज रहे। पहला बात तो ये है, क्योंकि पहले आप शायद उसको देख समझ नहीं पाते, लेकिन आज के क्लास के बाद थोड़ा बहुत आपका आइडिया होगा। तो अब Yes, जब sir. आपको कोई तकलीफ होगी तो आप वर्ड को जैसे ही आप डिक्शनरी में निकालोगे तो वहां पे ये प्रोनाउंसिएशन कीज भी रहेगा, कैपिटल में रहेगा, स्मॉल में रहेगा, तो यू विल अंडरस्टैंड किसमें मैं ज्यादा प्रोनाउंस करूं, किसमें मैं कम करूं। सो यू विल अंडरस्टैंड द वे इट इज। दिस इज द वे यू हैव टू गो पूनम, देयर इज नो एनी अदर वे टू गो इट। मैं नहीं Yes, बोलूंगा sir. इतना ज्यादा इस पे वर्कआउट करे, इतना ज्यादा भी वर्कआउट ना करे, लेकिन आपको अगर प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप डेफिनेटली इस पे काम करें। मैं सबको, देखो लर्निंग के लिए आज हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि वर्ड्स, आज हम लोग वर्ड्स के बारे में जान रहे हैं, इस तो उसी हिसाब से आज हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन फोनेटिक्स एक क्लास का नहीं है। फोनेटिक्स Yes, sir. सीखने में लोगों को 3-4 महीना लगता है, एंड आई डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम, ना आपके पास टाइम नहीं है। Yes, तो sir. Even इट I was very confident about like my pronunciation is appropriate or okay. But after today's class, I am realizing this thing that what is happening. So this हाँ, is तो वही बात नहीं, रियलाइज करे, उस पे काम करे एंड उस पे yes, टाइम दे, लेकिन बोलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बोल दिया था कि बोलना और लोगों को समझाना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और जब आप ये दो काम कर पाओ, उसके बाद आप फोकस करो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। बिकॉज ऐसा नहीं कि अगर मैं बिहारी हूं तो मेरी आवाज बिहारी के जैसा निकले, आई शुड साउंड लाइक एन इंग्लिश पर्सन, सिंपल। yes, लोगों को right. मेरे आवाज से ये ना लगे कि यार ये तो बंगाली है। तो जैसे बहुत बंगाली है जो हिंदी में जब बात करते हैं ना तो वो समझ में आ जाता है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। When you talk Hindi, you should talk like a Hindi. When you speak Bengali, you should speak like a Bengali. When you speak English, you should speak like an English person. At least मतलब pronunciation सही होना चाहिए। तो satiated का मतलब होता है satisfied. आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी नहीं, हाँ, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है, मैं पहले आर्कियोलॉजी बोल रहा था लेकिन अभी मैं आर्कियोलॉजी बोल रहा हूँ बिकॉज द प्रोनाउंसिएशन इज लाइक दैट। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है, आप लोग देखोगे बहुत लोग ना पुराने चीजों के ऊपर रिसर्च करते हैं। वो लोग जमीन खोद खोद के दे टेक आउट द स्केलेटन, दे टेक आउट लॉट ऑफ थिंग्स, बोन्स, बहुत पुराने पुराने बोन्स। सो यू कैन से the study of, you know, the history and the biology of the life, the study of history is archaeology. Dattavид. Shasan Vibhag. Right, absolutely. बहुत लोग, you know, they study that. Opinionated, it's not opinionated, it's opinionated. Opinionated का मतलब होता है some person ना जो, ये adjective है, satiated verb है। नेक्स्ट क्या है? आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी इज अ नाउन। ओपिनियनेटेड इज एडजेक्टिव। ओपिनियनेटेड उसको बोला जाता है जो दूसरे के ओपिनियंस को नहीं सुनता है, अपने ओपिनियन को ही मानता है कि मैं ही सही हूं, दूसरे की ओपिनियन सही नहीं है। तो अगर मुझे लगता है कि पूनम किसी दूसरे का नहीं सुनती है, तो हम बोलेंगे पूनम इज ए ओपिनियनेटेड लेडी। पूनम इज ए ओपिनियनेटेड लेडी। ओपिनियनेटेड मतलब वो खुद के ओपिनियन में वो हमेशा जोर लगाती है, दूसरे के ओपिनियन को जगह नहीं देती। ओके पूनम, आई थिंक इट इज अंडरस्टूड। ओपिनियनेटेड मतलब जो दूसरे के ओपिनियन को इंपॉर्टेंस नहीं देता है। उसके बाद वी हैव द नेक्स्ट वर्ड दैट इज ब्रैगेडोशियो।
braggadocio, it is a noun. braggadocio मतलब arrogant behavior. braggadocio मतलब arrogant behavior. Braggadocio means it is a what, sir? It is a Verb, noun. adjective or It is a noun? noun. Braggadocio is a noun. What is the meaning, sir? Braggadocio, the meaning is bad behavior or arrogant behavior. Arrogant, जिसको बहुत ज्यादा घमंड होता है ना, उस बिहेवियर को हम लोग braggadocio बोलते हैं. See, वैसे today is not our vocabulary class, but still today we are learning word. So word आएगी तो phonetics की बात आएगी. अब phonetics की बात आएगी तो हम लोग कुछ word को जरूर phonetically में देखेंगे. So it seems like a vocabulary class, but this is a class of grammar only. Word by word हम लोग letter, word, sentence ऐसे करके हम लोग आगे जाएंगे. Okay. So braggadocio means a bad behavior. अब मैं आपको कुछ sentence दिखाता हूँ. आप उस sentence को देखिए, and I want everyone after this class, everyone will write 2 sentences each. मतलब satiated में 2 sentences, opinionated में 2 sentences, braggadocio में 2 sentences, archaeology में 2 sentences, मतलब total 8 sentences आप मुझे WhatsApp करोगे, so that I can see कि your sentence is right or not. क्योंकि आप अगर नहीं दिमाग लगाओगे, you will forget it, because today we have learned many words. Okay, so let's see the sentence. Try to understand the sentence. He drank greedily until his thirst was satiated. Satiated नहीं हाँ, satiated. वो एकदम मतलब लालच के साथ पीता गया जब तक उसकी प्यास में उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, या मिल गया, जब तक उसे मिला तब तक वो एकदम एक लालच के साथ वो पीता गया. ये सेंटेंस ऐसा होता है. He drank greedily until, जब तक, his thirst was satiated, जब तक उसकी thirst जो है वो satisfied नहीं हुई. He drank greedily until his thirst was satiated. Okay, we'll go for the next sentence. Archaeology has become a science. Archaeology has become a science. ये एक noun है तो उसको हम लोग ने ऐसे करके यूज किया. हम ऐसे ही बोल सकते हैं, we should learn archaeology. We should learn archaeology. It's a great learning. Guys, whatever the sentence I am talking or I am using, don't repeat those sentences. आपका sentence अलग होना चाहिए, एकदम अलग. Don't repeat the same sentences. और इस क्लास के बाद ही आप लोगों से मुझे आंसर्स चाहिए. Okay, this is a very nice sentence. Because Seema is so opinionated, she disregards the opinion of other people in favor of her own views. I believe कि आपको इसका pronunciation भी समझ में आया है और इसका meaning भी समझ में आया है, और ये sentence जानने के बाद you can make it कि आप इसको कैसे use करोगे. Because Seema is so opinionated, मतलब you know, kind of a person who thinks that my opinion is the best opinion. So Seema is so opinionated, she disregard, मतलब disrespect करना. She disregards the opinions of other people in favor of her own views. वो दूसरे के opinion को कदर नहीं करती है. Okay, we'll go for the next one. Braggadocio. Do में pronunciation will be high. Braggadocio. Okay. When my husband's braggadocio gets to be too much for me, I tell him to stop making up stories. जब मेरी husbands की जो arrogant behavior थी बहुत ज्यादा होने लगी, तो मैंने उसे बोला कि stop making up stories. मैंने उन्हें चुप कराया, बोला कि stop making up stories.
अब बंद करो ये सब स्टोरीज. When my husband's braggadocio. Braggadocio मतलब arrogant behavior or bad behavior. So when my husband's braggadocio means husband's arrogant behavior, when my husband's braggadocio gets to be too much for me, जब वो हद से ज्यादा हो गया, I tell him to stop making up stories. So these are the way we can use the word braggadocio. So today we have learned ardent, we have learned pyromaniac, satiated, braggadocio, opinionated, archaeology. In future also we'll be learning many words. But step by step we are going. We learned alphabet, we are learning words. Next class we'll learn sentence. Slowly and gradually we will go ahead.